مائنی میں کنوں اکھاں درد وچھوڑ دا حال نہیں مائنی میں کنوں اکھاں دکھاں دی روٹی سولاں دا سال آہی دا بال بال نہیں مائنی میں کنوں آکھاں درد وچھوڑ دا حال نہیں مائنی میں کنوں آکھاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام معاشرے کے ساتھ میں ہوں محسن اقبال۔ آج کے ہم اس پروگرام میں معاشرے کی ایک تلخ حقیقت آپ سے شیئر کریں گے۔ آج کا میرا پروگرام بالکل مختلف ہونے والا ہے۔ یقین مانیے اتنا مختلف ہے کہ مجھے خود بھی اس چیز کا اندازہ نہیں کہ کیا میں یہ شو کر پاؤں گا یا کہ نہیں۔ صرف اتنا کہوں گا کہ دنیا میں بہت ساری ایسی جگہیں جہاں پہ آپ کا جانے کو دل نہیں کرتا، بہت ساری ایسی جگہیں جہاں پہ آپ کو جانے کے بعد حیرت اور اچنبے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دنیا بہت ساری ہستیاں آئیں، اب ایسے کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سب سے ہمیں پہلے نظر آتا ہے کہ جن کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی اور عمر آپ نے ان سے دعا کروانی ہے کہ اگر اس دنیا میں تمام انسان اب ایسے کرنی بن جائیں تو پھر بھی مولا کائنات حضرت علی اور عمر بن خطاب کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن پھر بھی دعا کے لیے حضرت اویس کرنی کو کہا گیا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ حضرت علی کی اس اصرار پر نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی یہ وہ اویس ہیں، یہ وہ اویس ہیں کہ جنہوں نے ماں کی خدمت کی تھی، ماں کی خدمت کی تھی، اور اس کے نتیجے میں جب یہ اپنے ہاتھ اٹھائیں گے دعا کے لیے تو اللہ کی ذات ان کو واپس نہیں لوٹائے گی۔ اللہ ان کے ہاتھوں کی حیا رکھتی ہے کہ جو ماں کی خدمت کرتے ہیں، یہ وہ مقام ہے۔ اس بلڈنگ میں میرے عقب میں آپ کو ایک گھر نما یہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے جس کو اولڈ ایج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی کچھ ایسے ہاتھ ہیں کہ جو اگر اٹھیں گے تو ان کے اور رب کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی، لیکن آج یہ ہاتھ بے یارو مددگار، بے آسرا، اپنوں کی راہیں تکتے ہیں۔ آئے میرے ساتھ ملواتا ہوں آپ کو ان ہاتھوں سے جو کہیں نہ کہیں ایک امید اور ایک آس کی کرن ان اپنے دلوں میں سمیٹے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئے میرے ساتھ۔ فرض کیجئے کہ میں اس بینچ پہ بیٹھتا ہوں اور ساری زندگی یہاں بیٹھ کے مجھے انتظار کرنا ہے کن کا؟ کہ جو میری دروازے کی ایک نوک پہ بابا بابا کرتے لپکتے تھے مجھے، وہ میرے بچے جو میرا انتظار کرتے تھے جب مجھے اس ٹیبل پہ بیٹھتے ہوئے صدیوں انتظار کرنا پڑے گا اور کوئی نہیں آئے گا، کہ جن سے دل چاہے گا باتیں کرنے کے، کہ جن کو اپنے انہی ہاتھوں سے اٹھاتے ہوئے ہم کھلاتے تھے، آج انہی بچوں کا یا اس ٹیبل پر بیٹھے اس بینچ پہ بیٹھے ہوئے انتظار کرنا ہوگا کہ میرا ساتھی میرا بچہ میرے ساتھ بیٹھے گا، لیکن وہ نہیں آئے گا۔ ہم آپ کو ملواتے ہیں ان سے کہ جن کی آنکھیں آج بھی دروازے کی طرف دیکھ رہی ہیں، کہ جو منتظر ہیں اپنے بچوں کے۔ آئیں چلتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک بزرگ ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ ان سے کچھ جانتے ہیں، کچھ گپ شپ کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے؟ کیسی طبیعت ہے آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ فرسٹ کلاس۔ کیا نام ہے سر؟ سجاد صاحب۔ صاحب کتنے عرصہ سے یہاں پہ؟ 7 سال ہو گئے۔ بچے؟ سب کچھ ہے جی پر اپنا کوئی نہیں ہے۔ کتنے بچے ہیں سر؟ 2 ہے۔ 2 بچے ہیں، بیٹا بیٹی؟ بیٹے ہیں۔ دونوں بیٹے ہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ کوئی بتا نہیں۔ کوئی 7 سال میں ملاقات؟ کوئی نہیں۔ یاد نہیں آتی سر ان کی؟
कभी कभी आते हैं कभी कभी याद। जिन बच्चों को अपने हाथों से खिलाया हो, उनसे खेले हो, कभी ऐसा कोई लम्हा? आते याद, फिल्में चलती हैं, देखते हैं, ख्यालों में आते जाते हैं। जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा नहीं आया कि जब दिल करे कि यार ये जो बच्चे मुझे छोड़ के गए थे उनके लिए बद्दुआ की जाए? नहीं, मैं बद्दुआ के नहीं करता, मैं नहीं करता। उन बच्चों के लिए सिर्फ इतना ही है कि कुर्बान जाएं ऐसे वालिदैन पे कि वालिद की शफकत फिर वही आ जाती है कि एक बाप अपने बहुत से बच्चों को संभाल सकता है, पाल सकता है। कोई एक बच्चा, ये सब मिलके अपने वालिदैन को नहीं संभाल सकते। सर यहाँ पे कैसा वक्त? अच्छा, दोस्त वगैरह? दोस्त हैं, गपशप लगाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। सारा दिन की क्या मसरूफियात रहती है? मैं तो कभी बाहर चला जाता हूँ, इधर उधर बैठ जाता हूँ, इधर एक दो दुकानें हैं, उधर बैठ जाता हूँ। थक जाता हूँ तो अब उम्र के हिसाब से ज़्यादा बैठ भी नहीं सकते ना, थक जाता हूँ तो आके अंदर लेट जाता हूँ, फिर थोड़ी देर बाहर चला जाता हूँ। इस तरह वक्त पास करता हूँ। यहाँ पे जो बाकी आपके अहबाब दोस्त वगैरह उनसे भी गपशप रहती है? तो रहती है, ये तो हमारे पास रहते हैं, उधर भी बिल्कुल सही। कोई ऐसी जिंदगी में ऐसा कुछ खुशगवार टाइम भी होगा आपका अकेले जवानी में, या बीवी की याद आती होगी, यार यार बड़ा अच्छा टाइम गुजरा था उनके साथ? आते हैं, बिल्कुल याद आते हैं। अच्छा, सुना है आपकी बिनाई नहीं है, कितना अर्सा हो गया बिनाई है? नहीं, ये 30 साल पहले बंद हुई थी, बचपन से कम होना शुरू हो गई थी 12 साल से, तो आहिस्ता आहिस्ता कम हो के ये 35 साल की उम्र में बंद हुई। अच्छा, तो ये शादी से पहले ही हो गई थी या बाद में? नहीं, शादी के 6 साल बाद टोटली बंद हुई। 6 साल बाद। तो यहाँ पे तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि आपकी जो बिनाई कुदरती एक बीमारी का सबब बनी और चली गई, लेकिन वो जो बच्चे जिनकी आंखें हैं और वो देख सकते हैं, उन्हें अपने वालिदैन नजर आना बंद हो गए हैं। अब इसका मैं आपको क्या जवाब दूं? शायद मेरी किस्मत में यही था। सही हो गया कि हमारे आज के इस माशरे में अपनी औलाद को पढ़ाया लिखाया, उनके लिए तकलीफ़ें दुख हर चीज़ बर्दाश्त की, और बदले में वो तो एक फर्ज था जो पूरा किया। हमारे के लिए क्या बेहतर है वो ऊपर वाला जानता। आपने सिद्धार्थ साहब की बातें सुनी और गुफ्तगू सुनी कि अल्लाह ने एक बीमारी मुसल्लत की और वक़्त के साथ साथ वो बिनाई से महरूम हुए। औलाद 2 बेटे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने अकल छीन ली कि सब कुछ होने के बावजूद वो अपने वालिदैन को नहीं देख सकते। इनके साथ ही चलते हैं, हमारे एक और भी मेहमान हैं, उनसे बात करेंगे और आपको उनसे मिलवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल चाल है? चंगा हाल है। ठीक ठाक हो? ठीक है। कितने बच्चे थे? 2 ही सी, अच्छा। एक फौत हो गया है, हाँ, एक है कितने होंगे? वो छदरे ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा, ते कितने टाइम हो गया छड़ के ਤੁਹਾਨੂੰ? कराची गया है ਹੁਣ। अच्छा, कराची गया है? कराची गया है, बस मैनू ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। अच्छा, ले जाऊंगा। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ये ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? साल हो गया है। साल हो गया है। वो कहेगा सी मैं चंद हफ्ते बाद आ जाऊंगा, आया नहीं? नहीं वो गड्डियां बंद हो गई सी ना कराची दियां,
वो इस पीछे फिर उतर भी नहीं आया। ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? मैं कोई नहीं किया। ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ना याद आती है, बड़ी जबरदस्त आती है, सारी रोंदी रहनी है। ਚੰਦ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? कोई जाता नहीं है। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾ। मैं डिग पई सा, इतों डिग पई सा, लत्त बड़ी खराब हो गई। मैंने हथ मेरा कम नहीं करते पे, मुंडे कम नहीं करते पे, बस इतों मैं चुके अंदर लै जाते ने, अंदरों बाहर लै आने ने। बस उन्होंने मैं टेलीफोन नहीं किया। अनकहे लफ्ज़ों से तस्वीर नंबर होंदा तो कर देना। बस तुसी दुआ करना, अल्लाह करे आ जावे। ऐसे हੱਥ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ हथ बड़े पसंद ने अल्लाह को। ये जो हाथ है, अगर अल्लाह की बारगाह में ये उठाए जाए ना, तो इनके और अल्लाह के दरमियान कोई दूसरी चीज़ हायल नहीं होती। और उसके बावजूद ये माँ अपने बच्चों के लिए दुआई करी जा रही है। हमें सिर्फ ये ख्याल रखना चाहिए। हथ काम नहीं करता, हथ काम नहीं करता, हथ काम नहीं करते हैं। रुड़की नहीं बननी जाती, औखी हो गया खानी है। मेरा पुत्र बहुत होया सी ना, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਨੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੂ ਦਾ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। मैं उठे, मैं क्या गड्डी कराई उस मामिया कॉलोनी जी, पता नहीं कितों की गड्डी लेती। मैं क्या तेरे को पैसे नहीं है तो मेरे को ले गए लल्ला। आंदा नहीं, मैं चाचू ने दे के भेजे सी पैसे। जिसले इत्थे आया मैं क्या इत्थे कित्थे आ गए? आंदा इत्थे चाचू आपे आवेगा तो ले जाएगा। जिन्होंने बच्चों ਨੂੰ ਆਪ ਪਾਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਦਵਾ ਦੇਈਏ ਉਹਨੂੰ? बड़ा करता है, ਬਦਵਾ ਦੇਈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? दिल बड़ा करता है। सारी रात होती रहती है, दिन ने बैठिया ने तू रोनी क्यों है? उन्हें नहीं आना। अच्छा मैं नहीं सारा दिन तस्वीर बड़ी रखनी है। तस्वीर पढ़ती रहनी है, जो कोई दसता है कोई और पढ़नी है वो पढ़नी है। मेरे को बोलिया नहीं जाता, मैं कदा तो सुनिया नहीं जाता। ऐनक लवाई नूं 2 साल हो गए ने, अखा बन गई ने, दोवें बन गई हैं। बस रोंदी रहनी है। टीपू आया, और नाम अरमान अली। अरमान अली, अरमान अली ते ਉਹਨੂੰ ਲਾੜਨਾ ਦਾਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਟੀਪੂ ਲਾੜਨਾ ਕਰਦਾ। ਲਾੜਨਾ ਲਈ ਟੀਪੂ ਸੱਦਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਮਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। चाचू ने टेलीफोन आया है, मां लैके आ, मैं तेन छड्डन चला मां कोल, मां होर कोल तेन छड्डन चला। मैं क्या अच्छा। जिसले इत्थे आए ते मुंडा इन्हां दा घर वाला जेड़ा फरहान भैया, ਉਹ ਆਂਦਾ मैं क्या कौन है मुंडा? आंदा चाचू दा यार है ना, चाचू दा यार है, हुणे आवेगा ते ले जाएगा, लापे ले जाएगा। मैं चलो अच्छा।
ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਟਿੱਪੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ। दूर थे लेकिन हमारे पास रहते। कोई गल नहीं इंशाल्लाह। सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ कहनी है कि उन तमाम बच्चों से कि जब हमने मरना है तो मरने के बाद हमने भी उसी मिट्टी में जाना है जिसमें हमारी माँ ने जाना है। फरिश्ते वही सवाल पूछेंगे जो हमारे वालिदैन से पूछे जाएंगे, लेकिन एक सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा कि तुमने अपनी बूढ़ी माँ को बेयारो मददगार क्यों छोड़ा। तुमसे तुम्हारी बीवियों की शॉपिंग के सवाल तो नहीं होंगे, तुम्हारी माँ के बेयारो मददगार छोड़े जाने के सवाल जरूर पूछे जाएंगे। अगर तुम्हें अब तक एहसास नहीं हुआ तो फिर तुम मरने का इंतज़ार करो, क्योंकि मरने के बाद ये सवाल ज़रूर पूछा जाएगा और इसका जवाब भी देना होगा। जी मेरे साथ वो मौजूद हैं सर सलीम, और बाकी तमाम स्टोरी वो इन्हीं से सुनते हैं और इनसे जानते हैं कि सर आपकी ज़िंदगी का सफ़र कैसे शुरू हुआ। सफ़र का तो शुरू हुआ 1968 में शुरू हुआ सफ़र। सर ये मसूरी जो है बेसिकली कैसे हुई? ये एक्सीडेंट, बाइक से एक्सीडेंट हुआ था मेरा। मैं खुद चला रहा था तो मेरे गलती मेरी है, कोस्टर को पीछे से लग गया। कितने बच्चे हैं सलीम साहब? 2 बेटियां थी, 1 बेटा है। बच्चे आते हैं मिलने? भांजे वगैरह आते हैं, भतीजे आते हैं। बेटा कितनी दफ़ा आया? बेटा 2 दफ़ा आया बेटा। 2-3 साल में? 2 साल में 2 दफ़ा आया जी। मिल के गया, देख के हैरान हो गया कि पापा आपका दिल लगता है इधर। मैंने बोला दिल लगे या नहीं लगे, दिल लगाना पड़ता है, वक़्त को पास करना पड़ता है। अच्छा, बच्चों को पढ़ा के आपने इतना? जी, बच्चा लंदन में गया, दुनिया लंदन में 4 साल रह के आया। वो उधर एजुकेशन करके आया, थोड़ी बहुत पढ़ के आया, काम करके आया। 4 साल वो उधर रहा। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने उन्हें दुनिया सारी घुमा दी, पढ़ा लिखा दिया, हर चीज़ की, तो उनके अपने घरों में अब जगह, इतनी सी जगह भी नहीं रही कि मतलब एक वालिद को एक जगह थोड़ी सी प्रोवाइड कर देते रह सकते हैं? लेकिन वो ठीक है आपकी बात, लेकिन आजकल का माहौल ऐसा है कि सेपरेट ही तन्हाई चाहते हैं। हर कोई आदमी तन्हाई चाहता है, कुछ भी हो। समझ आई? आजकल का माहौल ये है कि सास नहीं अच्छी लगती, सहुरा नहीं, ससुर नहीं अच्छा लगता, सेपरेट हो जी। सास ससुर का तो चले समझ आता है कि बहू के लेवल का होता है, लेकिन वो जो जिगर का टुकड़ा था जिसे मतलब अपने हाथों से खुद खिलाया हुआ है, उसे मतलब अपने हाथों में लेके जवान किया, वैसे चलना सिखाया हुआ है उंगली पकड़ के। बिल्कुल। तो अगर वो अब आके इस उम्र में कि जब आपको ज़रूरत है उसकी, कि आपको उसकी ज़रूरत है कि उसको टाइम दे, बैठे। आजकल की जो जनरेशन है ना, न्यू जनरेशन, वो बीवियों को कहने मानते हैं। लेकिन हमारी तालीमात तो इस्लामी, अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारे वालिदैन की तरबियत तो पूरी है, हर चीज़ तो ओके है, कि यहाँ पे कोई कमी नहीं, आपकी तरबियत में कोई कमी नहीं हो सकती है। मुझे ये कन्फर्म हो गया कि आपने उन पे हर चीज़ इन्वेस्ट कर दी। लेकिन औलाद फिर रात को अब पछतावा थोड़ा थोड़ा होता है। जब 2 दफ़ा लड़का आया ना मेरा, वो देख के हैरान हो गया मेरे को, पापा आपका दिल कैसे लगता है इधर। मैंने बोला सुनो बेटे, हमने दुनिया घूमी है, तुमने अभी दुनिया नहीं घूमी। तो कभी आता है दिल में ख्याल कि यार इन्हें बद्दुआ होनी चाहिए? कभी नहीं ख्याल किया। अल्लाह के ऊपर डोरी छोड़ी हुई है, अल्लाह पूरी करता है और ख्वाहिश पूरी करता है। थोड़ी सी भी होती है, अल्लाह करता है, ज़रा देर से करता है, करता जरूर है अल्लाह। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि इतना कुछ हुआ 2 साल में, वो सिर्फ 2 दफ़ा आया है, और आप फिर उसके लिए दुआ कर रहे हैं कि नहीं यार ठीक है, बददुआ नहीं करनी, कि बस ठीक है वो खुश रहे। बीवी बच्चों के साथ हैं, ठीक है, बोलता है पापा टाइम नहीं मिलता, ये वो
मैंने बोला हमें भी नहीं मिलता होता था टाइम जब तुमको खिलाते थे, तुम्हारे लिए 1 साल बाद आते थे, 6 महीने बाद आते थे, हमें भी टाइम नहीं मिलता था, लेकिन निकाल दो तो टाइम। अपनी मेरी शॉप थी उधर बाहर, अच्छा, किस चीज़ की शॉप थी सर आप? वॉच मेकर की, वॉच सेल सर्विस परफ्यूम, ये शॉप थी मेरी। अच्छा, आप अपने बच्चों को नहीं वो तो होता है, ये दिल में तो ख्याल आता ही है ना, ये तो नहीं कि नहीं आता, दिल में ख्याल आता है, लेकिन उनकी मसरूफियात है, बैंक में नौकरी कर रहा है कि उनको टाइम नहीं मिलता। पीछे इसलिए आया था कि पापा मैं बाहर के दौरे पे जा रहा हूँ बैंकों में, शायद 2-3 महीने नहीं आऊँ, तो मैं मिलना चाहता हूँ। मैंने बोला वेलकम। बिल्कुल सही। आपने इतनी बातें की और मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि क्या चाहेंगे अपने बच्चों से, क्या चाहते हैं? बच्चों ने क्या चाहना है, बच्चे हम तो ये चाहते हैं कि बच्चे फिर भी हमारे मुताबिक हैं। यानी आपके मुताबिक कल पढ़ गई तो हम काम आएंगे उनको, ये जस्तजू होती है हमारी। कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहें, कोई ऐसी बात आप कहना चाहें बच्चों के हवाले से, कोई पैगाम या कोई बात ऐसी? नहीं कोई नहीं, बस ठीक है, बच्चों में रह रहे हैं, ठीक है, कभी वक्त आएगा उनके ऊपर भी ये टाइम आना है, अगर जिंदगी रही तो फिर उनके साथ भी ऐसी वही होगा। तो बस बिल्कुल ऐसी है कि बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी तरबियत की, माशरे में उन्हें प्रॉपर तरीके से एक बाशऊर इंसान बनाया, और सबसे आखिर में मिला क्या कि बाबा आपको मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, आप यहाँ पे ठीक हैं, और मैं क्योंकि बिज़ी रहता हूँ, मुझ पर टाइम नहीं है। ज़ाहिर बात है, आज हम औलाद हैं, कल हम वालिदैन होंगे, फिर हम बूढ़े होंगे, और फिर वही बच्चे, जब हम बच्चे थे तो वक्त पलट के आएगा। सलीम साहब की हमने बातें सुनी, और इनके साथ जो बाकी दूसरे भी हैं उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। आइए मेरे साथ। आपने सलीम साहब की बातें सुनी, मैं यहाँ सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि बड़ी मशहूर कहावत है कि एक बच्चे ने अपने वालिद को दरिया में गिराने गया, तो वालिद क्या कहता है कि बेटा मुझे यहाँ नहीं, यहाँ गिराना। बेटे ने सवाल किया क्यों? तो उसने कहा मैंने अपने बाप को इस जगह गिराया था, तुम मुझे थोड़ा सा इससे 2 कदम आगे गिराना। बच्चा समझदार था, बात समझा, अपने बाप को साथ ले गया वापस घर। आप अपने वालिदैन को, जिन्होंने आप पर शफकत का साया रखा, तपती धूपों में आपके ऊपर एक छांव की मानत रहे, हर तकलीफ हर दुख सहा, बार मजदूरियां की, मेहनत की, आपको नहीं पता, लेकिन आपका हर चीज़ प्रोवाइड कीगी, हर चीज़ पहुंचाएगी। अब आज आप उन्हें यहाँ ओल्ड एज होम में छोड़ के जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने वही मिसाल कायम की कि दरिया के उस किनारे नहीं दूसरे किनारे फेंक देना। कल आपका बेटा आपको भी किसी ऐसे ही ओल्ड एज होम में छोड़ के चला जाएगा, और आप भी कहीं इंटरव्यू देते हुए यही कह रहे होंगे कि मेरा बेटा आएगा, वो मुझे लेने आएगा। इस पर ज़रूर सोचिएगा। मेरे साथ एक और ऐसी खतून है, इनका तारुफ मैं इन्हीं से करवाता हूँ और इनसे पूछते हैं। माँ जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुबैदा है। जुबैदा। मेरे बाप का नाम गुलाम रसूल है। माँ जी कितना अरसा हो गया यहाँ पे? मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं। मैं गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ी हुई हूँ, 8 जमातें। अच्छा। तो मेरे भाई मेरे साथ जाते होते थे, अकेली नहीं मैं जाती थी। अच्छा, आपको यहाँ पे कौन छोड़ के गया? मोहल्ले की औरतें के साथ आई थी। सही है। बच्चे कितने हैं माँ जी आप? एक ही बेटा है। एक बेटा है? एक बेटा है। मैंने वो भी अल्लाह से मांग के लिया था। अच्छा। लामिया मुझे एक दे दे, चाहे काला ही दे दे। जब पैदा हुआ तो वो सफेद ही था। अच्छा। तो मैंने उसे कहा मैंने काला मांगा था। अम्मी काला क्यों मांगा था? मैं भूखी पड़ी थी। मैं फिर देखो काला है आप काले हैं? नहीं मैं काला नहीं हूँ।
मैं जीते रहो बेटा। मैंने उसकी बड़ी अच्छी तरबियत की है। अमेरिका में है, PhD कर रहा है उसने। अमेरिका कितने साल हो गए हैं? मैंने नहीं गई, मैं नहीं अमेरिका गई। वो नहीं बेटा, हाँ जी। उसको पता नहीं 2 साल के 4 साल हो गए हैं। हाँ, स्टडी के लिए, स्टडी के लिए गया था वहाँ पे। स्टडी के लिए उसको बहुत शौक था। मेरे बड़े भाई ने, जमील है उसका नाम, उसने बहुत उसकी की है फेवरेट, बहुत ज्यादा उसके साथ मोहब्बत की है। अली आप जितना पढ़ना चाहेंगे मैं पढ़ाऊंगा। मिलने आया कभी बेटा पाकिस्तान? नहीं, अभी हाल ही नहीं आया, अभी नहीं आया। कहता था अम्मी मैं आऊंगा, अम्मी तेरे बगैर जन्नत नहीं लभनी। अच्छा, मैं आऊंगा जरूर, जब आएगा तो फिर मैं आपको कैसे बताऊंगी। बेटे की याद। ओए होए, हमें माँ बेटा तो कितनी उम्र है खुदा बंदी नहीं। तो मैंने उसकी इतनी अच्छी तरबियत की। नहीं, मुझे आप जैसी माँ नहीं मिलनी थी। मैं कहा मुझे तेरे जैसा बेटा भी नहीं मिलना था। अली नाम उसका रखा और बहुत ही नेक। आपने बातें सुनी और काफ़ी टाइम हो गया, बेटा अमेरिका चला गया और अभी तक वापस नहीं आया। इंशाल्लाह एक उम्मीद है, वही एक उम्मीद और वही एक किरण इनको आगे की ज़िंदगी दिखा रही है कि नहीं इंशाल्लाह है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप देख सकते हैं कि वो एक माँ जो उदास है और एक उम्मीद और एक उससे एक आस लगी हुई है कि कभी कहीं से वो आएगा, मैं उसकी शादी करूँगी, उसके अपने हाथों से खुद तैयार करूँगी। और वो एक आस उम्मीद आप कहीं ना कहीं नज़र आ रही थी। कहीं ना कहीं वो होता है कि हमें एक आस की वजह से हम लोग इन्हें क्या कह सकते हैं, मेरे लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं, मैं शायद उन लफ्ज़ों में बयान ना कर सकूं अपनी फीलिंग्स को। सिर्फ यही कहूँगा कि बस हमें हर चीज़ के साथ वो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारा वक्त वापस आता है, पलट के आता है। और अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जिन्होंने हमारा ख्याल रखा था आज उन्हें भी ज़रूरत है आपकी। मेरे साथ रहिएगा, मिलते हैं छोटी सी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। CKD एग्री लाया फिरोजा हाइब्रिड धान बीज, चौधरी खैरदीन एंड सन्स, बीज जानदार, फसल शानदार। वेलकम बैक। प्रोग्राम में दोबारा आप सबको खुशामदीद कहते हैं और मेरे साथ ओल्ड एज होम से ही एक बुजुर्ग है और इनसे पूछते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीम है। कितना अरसा होगा सर यहाँ पे आपको? यहाँ पर मुझे 4 महीने 5 महीने हुए। 4-5 महीने हो गए हैं। कौन छोड़ के गया था आपको यहाँ पे? मुझे मेरा भाई छोड़ गया। भाई छोड़ के गया है। कितने बच्चे हैं सर आपके? मेरे बच्चा कोई नहीं है। बच्चा कोई नहीं है। शादी वगैरह? शादी हुई है, वो बीवी फौत हो गई। यानी आप अपने बहन भाइयों के साथ रहते थे? लेकिन अब बहन भाई अलहदा हो चुके हैं, मकान बना लिया उन्होंने, तो मुझे यहाँ आना पड़ा। अलहदा हो गया तो उन्होंने फिर कहा कि अभी वैसे बहन भाई वगैरह कोई आया इन 4-5 महीनों में? कोई आया मिलने आपको? नहीं, हर महीने पर आते हैं, पैसे दे देते हैं, जो कुछ खर्चा वगैरह होता है वो दे देते हैं। सही हो गया। कोई बच्चे वगैरह तो जाहिर बात है आपके हैं नहीं, बाकी आपके तो सिर्फ आपका खानदान आपके बहन भाइयों से था। अच्छा टाइम पास हो रहा है। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए, चलो आपकी तो औलाद नहीं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जिनकी औलाद है और अपने वो हाथों से अपने वालिदैन को यहाँ छोड़ गए? छूट जाते हैं यार, ये पे बड़ी अजीब सी बात। वो हम देखें, हम भी थे, हमारे वालिद थे, हमारे वालिद थे, हम उनसे खेलते थे, उनको पेशाब खुद कराते थे। हैं ये लोग अभी क्या है, अभी ये लोग पेशाब से, इनको पेशाब कौन कराए? ऐसे ये सब ये एक अफवाह बना हुआ है। वो सब वे कौन जो नुआ आती हैं आपकी,
وہ اس میں شامل ہوتی ہے. وہ نہیں چاہتی کہ مطلب رہے. کیا کہیں گے اپنے آج کے اس پروگرام کے تحت آنے والے تمام بچوں کو جو نئے بچے ہیں جو جوان ہو رہے ہیں جن کے اپنے بھی بچے ہونے والے ہیں, کیا پیغام دیں گے کہ کیسے رہیں گے؟ میں تو یہی کہوں گا بھائی مل جل کے رہیں. میں تو کبھی نہیں یہ کہوں گا کہ یہ مطلب یہ چھوڑ دیں ان کو, کیونکہ ہم نے خود نہیں میرے 5-6 بھائی تھے. 5-6 بھائی تھے. 5-6 بھائی تھے. میرے والد صاحب تھے, ہم ان سے کھیلتے تھے. ان کو پیشاب خود کراتے تھے. جب وہ بڑھاپے میں آ کے بوڑھے ہو گئے ان کو پیشاب خود کراتے تھے. مطلب گھر میں کسی عورت کو نہیں ہے, خود کرنے. کیسا لگتا ہے جب آپ کے ارد گرد جو باقی سارے دوست ہیں جن کو ان کی اولادیں چھوڑ کے چلے گئے, کیسا لگتا ہے؟ یا یہ بہت ایک آکورڈ چیز لگتی ہے, اچھا نہیں لگتا یہ. لیکن کیا کیا جائے, وہ حالات ہی کوئی ایسے پیدا ہو گئے. ہاں, تو اس وجہ ہر کوئی دوسرا آدمی آتا ہے جی چھوڑ جاتے ہیں. اور میں کہاں سے آیا, ابو ظبی سے. اچھا, آپ ابو ظبی سے ایسے. ابو ظبی سے. یعنی جب تک پیسہ تھا بہن بھائی تھے, رشتہ دار تھے, سب تھے. میری تعلیم FSC تھی. میں نے PA میں رہا. PA سے میں پھر ایئر فورس میں گیا. میں 2 جنگیں لڑی ہیں. اس کی 51 کی کوئی اس جنگ, ہاں, ایک دوسری 71 سے ہوئی ہے. 2 جنگوں کے بعد کیونکہ میں نے ٹریننگ کی ہوئی تھی ایئر فورس کی. بہرحال انہوں نے مجھے وہاں سیٹ کیا جنگ کے لیے. 2 جنگیں وہ بھی لڑی ہیں. بڑے اچھے طریقے میں سارے کام ہوتے رہے ہیں. آخر میں آ کر یہ کبھی تھا ذہن میں خیال کہ یار کہ یہ تو مغرب بھی رسومات تھی نا, کہ مغرب میں تھا یہ اولڈ ایج ہوم, مشرق میں تو اس کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. نہیں تھا. لیکن یہ ہوا کیسے, یہ تو پھر پبلک ہی جانتی ہے کہ کیا چکر ہے. حالانکہ ہم نہیں برداشت کر سکتے. میں کسی کو نہیں جانتا, میں خود برداشت نہیں کر سکتا. PF کے زمانے تو آپ کو یاد آتے ہوں گے کہ جب آپ سارے اکٹھے نکلتے ہوں گے آؤٹنگ کے لیے باہر. 6 بھائی تھے ہم. 6 بھائی تھے, 5 فوت ہو گئے. بہنیں تھی 3, وہ بھی فوت ہو گئی. پر میں جب نکلا ہوں گھر سے تو میں اکیلا تھا. میں اکیلا سمجھ کے میں نے پھر اپنے لڑکا ایک میرا ہے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. ہاں, اس کو. وہ بچہ کدھر ہے؟ ابھی نوکری کرتا ہوں. کدھر نوکری کرتا ہے؟ مسقط میں. اچھا, مسقط میں آپ نے اس کو پڑھایا لکھایا بھی ہوگا, ظاہری بات ہے, محنت کی ہے, اسے اڈاپٹ کیا, تو اسے بھی نہیں خیال آتا کہ یار میں اپنے ان والدین کو رکھوں کہ جنہوں نے مجھے سہارا دیا تھا. یہی تو آپ کہہ رہے ہیں, میں سوچتا ہوں کہ مطلب اس نے بھی نہیں خیال کیا کہ یہ ہوا کیا. اس کی جو بیوی ہے سب کچھ چکر اس کے. کوئی رابطہ وغیرہ فون وغیرہ نہیں کیا اس نے؟ نہیں, رابطہ بھی کوئی نہیں کیا. مطلب وہ وہاں پھنسا ہوا ہے اس میں بیماری میں. کورونا والے جو ہیں. آ سکتا ہوں, ٹرائی کیا اس نے آنے کی لیکن نہیں آ سکے. تو یہ تو آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ میں چاہتے خود جہاں تک میرا تعلق ہے میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا, کیونکہ مجھ پر یہ گزری ہے. کیونکہ میں نے 5-6 بھائیوں کی خدمت بھی کی ہے. میں ایئر فورس میں رہا ہوں, پہلے ایئر فورس میں رہا ہوں. ایئر فورس میں میں لندن گیا, امریکہ گیا, سب چیز کرتے ٹریننگ ہوتی تھی, لیکن سب کچھ کیا. بہت اعلیٰ. اس سب کے باوجود, سب کو ہونے کے بعد سب کچھ ہو گیا. اڈاپٹڈ لڑکا اس کو میں نے, میری بیوی نے پڑھنے سے پہلے 16 لاکھ روپے کا مکان تھا ایک, اس کو بیچ کے دے دیا. جو اڈاپٹڈ بچہ ہے اس کے بچے وغیرہ بھی ہیں, شادی وغیرہ اس کی؟ 4 بچے ہیں اس کے. اچھا, دل کرتا ہے کہ یار چلو یار اڈاپٹڈ تھا لیکن ہے تو اپنے تھا, میں نے اپنے اسے پالا ہوا ہے, آئے چکر لگائے یہ ہے. دل تو میرا کرتا ہے نا کہ وجہ سے, لیکن کون سوچتا ہے.
मैं अबू धाबी से आया हूँ मैं। मेरी टांगें तकलीफ है टांगों में, तो वहाँ मैं अबू धाबी में था, एक अपना अजीज़ है उसके पास, वहाँ से आया, यहाँ पर एक घर आया, उन्होंने मुझे रात के अंदर सब कुछ फिक्स कर लिया। सवेरे उठा मुझे वो यहाँ छोड़। अल्लाह ताला रहम करें। आपने इनकी बातें सुनी और आपके सामने है कि बच्चे अपने हों या अडॉप्टेड, वो बच्चे आपके अपने होते हैं कि आप उन्हें अपना समझ के अपने पास रखते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उन्हें पालते हैं, पढ़ा लिखा करते हैं। गुफ्तगू के आगाज़ में इन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया था उस बच्चे का, वो तो गुफ्तगू में बातें निकल गई और उन्होंने बताया कि मेरा एक बच्चा अडॉप्टेड भी, जो अभी भी मस्कत में है। 5-6 महीने हो गए इन्हें यहाँ छोड़ दिया गया। वजह क्या? माजूरी, कि अब हम संभाल नहीं सकते। इन्होंने उसको संभाला जिसको संभालने के लिए लोग सोचते हैं। एक बच्चे अडॉप्ट किया, उसको संभाला, उसको सहारा बने, और आज जब उसका वक्त आया कि उसने अपना जो असल था उसकी तरह वापस आना था, तो वो यहाँ पे नहीं है। से दूर थे लेकिन हमारे पास रहते। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड एज होम के केयर टेकर कि जिन्होंने इस ओल्ड एज होम की बुनियाद रखी, फरहान अहमद साहब। सर आपका, और इन्हीं के साथ मेरे साथ मौजूद हैं उमर शहजाद साहब कि जो ओवरऑल इस ओल्ड एज होम को, बुज़ुर्गों को देखते हैं, इनकी कोऑर्डिनेशन है इसमें बहुत ज़्यादा। सर आपका बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर आपसे पूछा जाएगा कि ओल्ड एज होम की बुनियाद की बेसिक वजह क्या थी, क्या ख्याल आया, कैसे आइडिया है कि यार ओल्ड एज होम बनाना चाहिए? तकरीबन 12 साल पहले मेरे वालदा की डेथ हो गई थी, तो फिर बस मुझे ऐसे हुआ कि यार कोई ऐसा सेंटर होना चाहिए जिधर बुज़ुर्ग लोग आके रहें। और हमारे माशरे में ऐसा, बाहर के माशरे में तो होता है कि बुज़ुर्गों को ओल्ड एज होम में भेज देते, लेकिन हमारे इधर ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा क्यों ना अपने शहर में कोई ऐसा चीज़ बनाई जाए कि बुज़ुर्ग लोग आके इधर रहें। और तकरीबन 11-12 सालों में हमारे पास बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग आके आते हैं और रहते हैं, और कईयों की औलाद उनको खुद ही छोड़ने आ जाती है। तो ये भी एक अलमी ही है, लेकिन मेरी ख्वाहिश होती है कि जो हमारे पास बुज़ुर्ग आते हैं वो अपने औलाद से लड़ झगड़ कर ही आते हैं, तो कोशिश करता हूँ कि वो उनकी आपस में सुलह हो जाए और वापस चले जाएं। और किस हद तक इसमें कामयाबी आप हो पाए कि मतलब औलाद जब खुद छोड़ के आती हुई, तो ये भी तो कहा जाता है ना कि उम्र का एक ऐसा तकाजा है कि जब इंसान बुढ़ापे की तरफ जाता है तो उसमें वो बचपना वापस आता है। तो जब ये आते हैं तो कैसा आलम होगा आपके लिए, कैसे हैंडल करते हैं इन्हें? जब ये आते हैं ना घर से, तो बड़ा कहते हैं जी हमारा बच्चे होंगे भी तो कहेंगे जी सब चीज़ें ख़त्म हो गई, बच्चे मैं अकेला हूँ, मैं बच्चे बुरे लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि जी मर गए हमारे बच्चे, हमारे लिए मर गए। तो फिर जब कुछ अरसा रहते हैं, कुछ अरसा टाइम गुजारते हैं ना, तो फिर उनको फिर अपने बच्चों की याद आती है, तो फिर वो याद करते हैं कि हमें कोई लेने आए तो हम चले जाएं। तो फिर ऐसा होता है कि आस्ता आस्ता उनका ज़हन बनाता हूँ कि नहीं, अगर कोई लेने आएगा तो आपने चले जाना है। तो फिर मोस्टली ज़्यादातर चले जाते हैं। ज़्यादातर जो होते हैं ना बुज़ुर्ग लोग आते हैं वो चले जाते हैं जब उनका कोई पीछे से लेने आ जाए। वक्ती तौर पर उनको गुस्सा होता है, लेकिन बाद में कुछ अर्सा जब इधर गुजारते हैं बुज़ुर्गों में, तो फिर ठंडे बढ़ जाते हैं, फिर वापस अपने बच्चों को। ज़ाहिर बात है कि मतलब वालिदैन जो भी है, हमने जितनी बातें सुनी इन सबसे, वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के हक़ के लिए दुआ ही गो हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं ये नहीं एलिमेंट आया सामने कि मैं बदवा दूंगा या मुझे गुस्सा है, वक्त के साथ शायद इसीलिए वो फिर इंतज़ार है। बिल्कुल, जब शुरू पे आते हैं तो उनको बड़ा गुस्सा होता है, लेकिन जब
थोड़ा अरसा गुजारते हैं, टाइम गुजारते हैं, तो फिर उनका दिल नरम हो जाता है, फिर वो कहते हैं जी हमें कोई लेने है तो हम चले जाएं। तो अमूमन ज़्यादातर जो भी लेने आता है ना तो चले जाते हैं वापस, इनको घर में ही सुकून होता है, इधर नहीं सुकून। ऐसी है। अच्छा, हमारे साथ उमर भाई भी मौजूद हैं। उमर भाई, कैसा सिस्टम रहता है कि जब बाकी छोड़ते हैं तो आपके लिए संभालना कैसे, इसके लिए कितना मुश्किल होता होगा कि जब बच्चा छोड़ के चला गया, अब वो एक बुजुर्ग आदमी है, बच्चे को संभालना तो कहते हैं शायद आसान हो, लेकिन अब एक बुजुर्ग एक उम्र के इस हिस्से में आ गया, 2-3 दिन या वो कैसे मामला, फिर कैसे आप देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनको जब बच्चे छोड़ के जाते हैं उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। बच्चे को बहलाया जा सकता है, बुजुर्ग को बहलाया नहीं जा सकता, तो उनको संभालना बड़ा, फिर यानी कि अपने आप को वहाँ पे रखते हैं कि हम ही आपकी औलाद हैं, आप ये समझें कि हम ही आपकी औलाद हैं। उनके साथ सलूक उस तरह का करते हैं कि उनको यही फील हो कि ये हमारे बच्चे हैं। उनके साथ बैठते हैं, उनकी बातें, बुजुर्ग की आप बातें सुन लें ना, सिर्फ उनके दिल का जो गुबार होता है वो सुन लें, उससे वो ठंडे हो जाते हैं। ऐसी है। अच्छा, खाने वगैरह की डाइट वगैरह पे कैसे आप वो पता चलता है कि यार ये अब मिजाज के मुताबिक ये ठीक है? बड़ा मुश्किल नहीं होता होगा? जी मुश्किल तो होता है, लेकिन 1-2 दिन में जो है ना इसकी समझ आ जाती है। वो खुद उनकी भी अपनी भी डिमांड को सामने आ रही है। कुछ उनकी बुजुर्ग जो होते हैं वो आपको पता है ओवरऑल एक लेवल का उनको खाना, अगर आप उनको ज़्यादा खाना देंगे भी ना, उनकी पसंद का भी खाना दे देंगे तो वो थोड़ा सा उसको चखना उनके लिए होता है, उनके लिए खाना नहीं होता। ऐसी बिल्कुल उनके लिए चखना होता है, वो थोड़ा सा खा के वो बाकी अपने लिए सेव कर लेंगे कि मैं बाद में खा लूँगा। ठीक है, अगर आप एक टाइम के उनको 1 प्लेट देते हैं ना, हो सकता है वही 1 प्लेट वो 3 टाइम खा लें। अच्छा, वैसे ये सवाल क्योंकि एज अ कोऑर्डिनेटर आप हैं तो मैं इसी सवाल आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे फंडिंग या बाकी सारे इंतजामात कैसे संभाले जाते हैं, क्योंकि बीमार भी होंगे तो मेडिसिन वगैरह ये बाकी सारे एक्सपेंस? अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा काम अभी तक फरहान भाई देख रहे हैं। हमारे पास कोई हमारा फंडर नहीं है, कोई डोनर नहीं है हमारे पास कि जो हम कहें कि ये हमें डोनेट कर रहे हैं, और इस तरह ये जगह खरीदी फरहान भाई ने अपने पैसों से, और सारा यही देख रहे हैं। यानी कि हमें बाहर से अभी तक हमें कोई किसी किस्म की कोई फंडिंग नहीं है। ये एक बड़ी बात है फरहान भाई। मैं अभी इसी आपकी तरफ आऊँगा कि सर कैसे, सर मतलब बड़ी अनयूजुअल सी बात हुई थी कि पाकिस्तान में फिर गुजरांवाला में कि अब ये अलमी आ गया कि हमें ओल्ड एज बनाने की ज़रूरत पड़ गई है। क्या समझते हैं सर, हम किस तरफ जा रहे हैं? बस हमारा भी मुआशरा जो है ना वो मगरबी माहौल की तरफ जा रहा है। हमारे इधर अभी ने इस अदारे के भी इतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं की। अगर इसकी एडवर्टाइजमेंट कर दी तो इधर बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा तादाद में हो, लेकिन ये तो बिल्कुल किसी को भी पता नहीं है। तो लेकिन किसी को पता नहीं है तो हमारे पास काफ़ी अफराद है। अगर एडवर्टाइजमेंट हो तो इधर बहुत ज़्यादा रश हो। हर दूसरी तीसरे घर में बुजुर्ग एक मसला बना हुआ उनके लिए। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि जो बुजुर्ग हैं वो तो रहमत होते हैं घर में, लेकिन कई लोग ऐसा नहीं समझते। हमारे पास जो बुजुर्ग हैं, मैं तो उनको देखता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ कि यार क्यों जिनके बच्चे होने के बावजूद वो खुद इनको छोड़ने आते हैं, तो बड़ा दुख होता है। बिल्कुल ऐसे ही सर कि हम लोग मशरकी मुआशरे के होते हुए, इस्लामी तालीमात के होते हुए कि किस जगह पर जा रहे हैं कि ये हमें खुद भी नहीं पता। मैं आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं एक मुआशरे में अपने पहले तो जो बच्चे हैं उनके लिए एक पैगाम देना चाहूँगा कि खुदारा मेरे आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मैं, अपने माँ बाप की कदर करें। उनसे पूछें जिनके इस दुनिया में नहीं है कि उनके लिए ये क्या चीज़ है। कल को आपने भी बूढ़े होना है, आपने भी माँ बाप बनना है। वो एक कहावत है, शायद आपने आगे पहले इस प्रोग्राम में कही भी है, कि एक बच्चा अपने बाप को दरिया में फेंकने के लिए गया तो उसके बाप ने कहा कि मुझे यहाँ ना फेंको, थोड़ा आगे करके फेंको। बच्चे ने वजह पूछी कि क्यों, तो उसने बोला कि मैंने यहाँ पे अपने बाप को फेंका था, कल को तुझे भी किसी ने फेंकना है। खुदारा इस चीज़ का ख्याल करो कि कल को तूने भी बूढ़े होना है। और दूसरी बात, मैं अपने सरमायाकार जो हैं, जो ताजर हैं हमारे, जो जिनको खुदा ने दिया है, उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने पैसों पे सांप बन के ना बैठ जाएं। ना कफन की जेब होनी है और ना ये आप कब्र में साथ ले जा सकते हैं। हकीकत बात है। खुदारा इस तरह के लोग जो इस वक्त इन मुसीबत में हैं, और ये जो कोरोना का दौर जा रहा है, ये हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल हुआ है
इस सारे को मैनेज करना। हमने बहुत अपीलें की हैं, बड़ा कुछ किया है, लेकिन बहुत से लोगों के पास भी गए हैं, आते हैं, विजिट करते हैं, चुप करके निकल जाते हैं। खुदारा इनके लिए थोड़ा सा हिस्सा निकालें, उसका बदला आपको उससे 10 गुना ज्यादा मिलेगा, ये मेरे खुदा का वादा है। ठीक है, आपसे मैं यही आपके बहुत ज़बरदस्त सर, बहुत गुजारिश करना चाहता हूँ सबसे कि इन लोगों के लिए थोड़ा सा हिस्सा निकालें। प्रोग्राम के इख्तिताम में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस 4 साल के एक्सपीरियंस में बहुत सारा काम किया, बहुत सारे प्रोग्राम और रिपोर्टिंग की। आज तक मेरे लिए इतना प्रोग्राम कोई मुश्किल नहीं था जितना कि आज का प्रोग्राम था। सबसे बड़ी बात इसमें यही कहूँगा कि मुझे ये सोचते हुए भी बड़ी हैरत और दुख होती थी कि कैसे हम लोग इतनी हिम्मत जुटा सकते हैं कि अपने वालिदैन को, अपने माँ बाप को अपने हाथों से रुखसत कर देते हैं, छोड़ जाते हैं यहाँ पे, और फिर ये कहते हैं कि माँ मैं एक दिन आऊँगा तुझे लेने। वो चाहे बेटा अमेरिका चला गया है, वो बेटा मस्कत चला गया है, वो कहाँ चला गया, लेकिन हर एक ने बात सिर्फ इतनी है कि मैं आऊँगा तुझे लेने। मुझे यहाँ पे एक ही बात आती है, वो बात मैं नहीं कर रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि बदबख्त है वो शख्स कि जिसने अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाया और जन्नत ना पाई। ये लम्हा फिक्री है आज का कि पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहाँ हमें इस्लामी तालीमात तो दी जा रही है, जहाँ हमारे पास ऐशो इशरत की हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन हम कहीं ना कहीं मगरब की तरफ जा रहे हैं। उस मगरब के चक्कर में हमने बहुत सारी चीज़ें ज़ाया कर दी। बस इतना ही कहूँगा कि अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, उन अपनों का जिनको आपकी बहुत ज़रूरत है। नए प्रोग्राम के साथ, नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।